to impact your examination as well as your campus interview. क्योंकि सिंपल बात है, पढ़ के तो बुक पढ़ के या फिर गूगल से देख के आप तो कुछ भी पढ़ सकते हो, but then why you need me then? You need my knowledge because I spend my time in the industry. इसलिए वो इंडस्ट्री के जितने इनपुट्स है मैं अपने पीपीटीज में डालता हूँ. That's why when I send the notes and also the PPT, तो मैं इसलिए हमेशा PPT का PDF फाइल आप लोगों को भेजता हूँ ताकि आप जब नोट्स देखें तो इस PDF फाइल को एक बार जरूर देख ले. इससे आपको थोड़ा स्लाइड के हिसाब से समझने में आसानी होगी कि व्हाट आर द एग्जांपल्स आई हैव गिवन. अगर आपको कहीं पे डिस्क्रिपेंसी लगता है कि इसके साथ इसका मैच नहीं हो रहा है, pick up your phone and straight away call me or either you can send me a personal WhatsApp also. वो आपकी बिल्कुल इच्छा है. लेकिन whenever you read my notes and think, please follow my PPTs also, because PPT के अंदर बहुत सारे डेटा होता है which will also help you in scoring marks in exam. Naturally उसके बिना तो कोई फायदा है ही नहीं, and also in future also because my PPTs are made such a way. Okay, तो चलो आगे बढ़ते हैं फिर. Okay, let's see क्या है आज हमारे साथ. Okay, so this is where we stopped last time, and you can see on the screen at this point of time, it's the machine and the equipment that you need in the in-room dining. So once again, I have told you who trying to knock me at this thing, Neeraj Sahu. Okay, right. Machines and equipment, as you have already seen, that there is a computer system, and the computer system includes all these factors. The first of all, this is the one which is known as a micros printer. You can take a look. It's an Oracle, and then you got a KOT printer. So when you punch the order, the way the person is punching the order here, it will come as a slip from here, and that slip will be hang around in this KOT hanger. यही वो होता है KOT hanger जो हमने इंस्टाग्राम और फेसबुक के जो मीम्स होता है होटल मैनेजमेंट के ऊपर, उसमें हम लोग देखते हैं कि शेफ्स आर completely destroyed when they saw there is a huge long anaconda style big KOT has coming from the machine. Okay, then obviously there is a KOT hanger is there, and finally see आज के दिन में ये इस तरह के KOT machines जो है वो होटल में आ चुका है, where we can take a look that these machines are, you know, यहाँ पे इसका printer है और यहाँ पे इसका KOT computer है, and there underneath of it this one is known as a KOT box, or we can also call it a cash box. Now what's the use of cash box? Let's take an example. Whenever you will see this when you go to the hotel, when when a guest gives a cash, you need to punch on the computer that okay the bill was settled as a cash. जैसे आप उसको cash में hit करोगे, this box will open up, and once this box will open up, then you will find that there is a cash, वो उसमें आपको changes देना होगा, इसलिए हम इसको कहते हैं cash box. Okay, right? This will going to help you when you go to the industry for industrial training, then you take a look at that. Okay, after this we'll take a look at the KOT puncher. This is the puncher and this is the box we have seen in the last time also. ये जितने सारे KOT punch होता है इस बॉक्स में, जैसे रात के 12 बजे के बाद जब शिफ्ट क्लोज हो जाता है, सारे KOTs को यहाँ से निकाल के इसके अंदर डाल दिया जाता है. फिर 12 बजे के बाद, एक रात के 12 बजे के बाद there is a new day starts, then new KOT also open because night shift में भी IRT चलता है and it's a 24/7 operation. Okay, so 12 o'clock के बाद यहाँ पे सारे KOTs निकाला जाता है, उसको एक पेपर में ऐसे रैप करके इंचार्ज सुपरवाइजर जो IRT का होता है या फिर मैनेजर जो भी है वो साइन करता है कि यस दिस हैज बीन डन, एंड ऑल्सो उसके ऊपर एग्जीक्यूटिव शेफ भी साइन करता है या फिर रूम सर्विस किचन का जो हेड है दैट पर्सन आल्सो साइन, एंड दैट साइन KOTs will go inside this box. So tomorrow morning फाइनेंस से एक आदमी आएगा 9 बजे चाय कॉफी पी के, उसके बाद वो यहाँ से इस KOT बॉक्स को ओपन करेगा. इसकी जो चाबी है, दिस चाबी इज ऑलवेज रिमेन विद द फाइनेंस टीम. सो यहाँ पे एक छोटा सा होल होता है, उस होल के अंदर से वी यूज्ड टू पुट दिस KOTs इनसाइड. ओके, सो नेक्स्ट दिन वो आता है, उसके बाद इस चाबी को खोला जाता है एंड देन ही पिक अप दिस बिल्स और वो KOT लेके जाता है वो, एंड देन वी ही चेक एवरीथिंग. अब वो क्या चेक करता है?
जैसे हम माइक्रोस में कोई कंप्यूटर में कुछ पंच करते हैं ना, वो रिकॉर्डेड हो जाता है, और ये सारे रिकॉर्ड फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास जो सॉफ्टवेयर है उसमें पहुंच जाता है. तो what will happen now, this person, I mean this the people who are there in the shift, जो शिफ्ट इंचार्ज था वहां पे, रूम सर्विस सुपरवाइजर था, वो सुपरवाइजर वो क्या क्या करता है कि उस मेल को, आई मीन लाइक वो सारे जो साइन होता है, कल अगर टुमारो इफ देयर इज एनी discrepancy, let's take an example, there is an order for room number 324 at 10 o'clock in the night which says lal mas with garlic naan, बट कल 3 to 4 तो वेकेंट था, लेकिन केओटी इसका रेज हुआ है, लेकिन इसका बिल नहीं है. तो ये लाल मास विद गार्लिक नान, ये क्या राहुल सिक्का के पेट में गया है, या फिर किसी अंकिता के पेट में गया है, या फिर ये सृष्टि मेहता के पेट में गया है, या तो फिर ये शायद आर्यन के पेट में गया होगा, या तो फिर मंथन के पेट में गया होगा. तो ये सब इन्वेस्टिगेशन फिर शुरू हो जाता है. ये जनरली क्या है कि ये मैं क्यों एफएमबी को हमेशा ब्लेम करता हूं इस बारे में, क्योंकि ना ये फाइनेंस डिपार्टमेंट का ये कॉमन थॉट्स है. दे ऑलवेज फील अगर कुछ डिस्क्रिपेंसी है तो एफएमबी के टीम ने ही चोरी करके खाया होगा, वेयरएज वो ऐसा लगता है कि फूड प्रोडक्शन के टीम है वो तो दूध के धुए होले. लेकिन जबकि देखा जाए तो शेफ क्या करता है, अपना खाना खुद पकाता है और खुद खाता है. शेफ विल नेवर गो टू अ कैफेटेरिया टू ईट फूड, उसके लिए कभी कोई केस फाइल नहीं होता है. This is the main problem with the FMB. That's why there is always a fight between the FMB and the food production in any kind of hotel you go. Okay. Then there is something called trays. That the tray is the another major equipment which you all know. ये इसका size होता है. And then उसके बाद we'll go to the teapots and all. ये देखिए ऐसा होता है teapot. We have seen last time the tray racks. ऐसे पहले आपका trays ऐसे set होता है. Once the guest has placed the order, इस tray को आपको बाहर निकालना है, खाना डालना है, and then you leave the department. उसके बाद ये रूम सर्विस ट्रॉलीज दैट वी हैव सीन लास्ट टाइम. नाउ विल सी आवर न्यू इक्विपमेंट. इसके बाद आता है आपका क्लॉश. नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड, इट्स द प्रोनाउंसिएशन इज नॉट क्लॉचे और इट्स कॉल्ड क्लॉश, CLOCHE. क्लॉश इज अ कवर फॉर द फूड व्हिच कैन बी फाउंड इन अ प्लास्टिक में आपको मिल सकते हैं, कैन फाइंड इन प्लास्टिक जस्ट लाइक दिस वन. ये देखो यहाँ पे प्लास्टिक दिख रहा है. Then you can find it in a stainless steel form. ये देखो stainless steel form में है, looks very elegant, and there is something called glass. Okay. Now people थोड़ा सा common sense use कीजिए और कहिए कि ये प्लास्टिक के ऊपर एक छोटा सा होल क्यों है यहाँ पे जो बाकी सब में नहीं है. सर क्योंकि जो गरम स्टीम निकल जाए. Okay, let's Rahul speak. Let's Rahul speak. कोई भी डिश गरम होती है तो उसकी जो हीट होती है ना वो बाहर आ जाए कि उससे डिश खराब ना हो. Absolutely right. That's absolutely good. So that's how the answer from Rahul. Excellent. Now once again, then ये स्टील के ऊपर क्यों नहीं है ये स्टील के ऊपर क्यों नहीं है? सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए. Nobody knows. स्टेनलेस स्टील के ऊपर why there is no? इसलिए रखा जाता है जिससे कि जो फूड है वो सिर्फ वो देख, जो खाने वाले वो देख पाए और जो इंसेक्ट फ्लाइज होती है उससे प्रोटेक्ट किया जा सके. Fantastic. That's great. Yes. So steel का reason यही है. That's very good, Muskan. So what he's trying to say basically is that there is no hole inside the steel because the steel, if there is a hole, I mean the people, the insects will come, and also at the same time the steam will go away. But yes, then why a plastic? Plastic का use इसलिए किया जाता है so that what happen if there is a plastic is slightly cheaper in nature. Steel और glass पे बड़ा expensive होता है. मैं आपको सीधी भाषा में बोलता हूँ, when I used to work in Trident Jaipur, मेरे होटल में स्टील और ग्लास वाले जो क्लॉश होता था, that used to be in number of only 10 or 15. तो स्पेशल VVIP के लिए या फिर MBG गेस्ट जो होता है उनके लिए निकाला जाता. बट इन केस ऑफ द प्लास्टिक वन वी हैव अराउंड लाइक 100-200. क्यों? क्योंकि ये चीप है, सस्ता है ये. ओके. इसके बाद we'll take a look at the bird bath. Obviously no room service tray or trolley.
People, please mute yourself, otherwise leave the meeting if you want. एक सेकंड होल्ड करो. Umaid, you can leave the meeting if you have other job to do, please, or else stay quiet in the meeting. Okay. Now, as you can see that there is a bud vase. So bud vase is something that is required for the purpose of holding flowers. Naturally, जो restaurant में होता है, वैसा एक same चीज you will also find it in the room service also. ठीक है? So the cloche and bud vase. ठीक है? So these are your basic equipment. देखो मैं I will not going to say about the cutleries and all because cutleries are same. लेकिन ये कुछ एक्स्ट्रा इक्विपमेंट है जो रूम सर्विस डिपार्टमेंट में ही आपको दिखेगा. ओके. Next, we go to the room service jam pots. This we call a room service jam pot. Now, in the hotel, in the restaurant, you will find all the food, all the pots and all everything. I mean, like all the sauces, condiments are given in a bowl. Where in case of in a room service, it all are given on a package thing. So this is let's take an example. Very very common dishes. This is known as a marmalade. Marmalade, jam, honey, ketchup, जो भी है, they will be given in a small bowl like this. Sorry, small container like this, where you can have all this thing. And remember one thing, the worst part of is that if you open one cap, if you open the cap and even if you don't use it, it is always advisable that उसको आप फेंक दीजिए, because यही सबसे प्रॉब्लम है कि इसका कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन सो हाई है, बट इट गिव्स यू अ स्टैंडर्ड. मतलब समझ लो ये हनी का पैकेट है, गेस्ट ने ऐसा सिल उसका ओपन करके छोड़ दिया, लेकिन हनी उसमें से निकाला ही नहीं. लेकिन the problem is you will never know whether the guest has taken out honey from that or not, because the room is closed and in the room there is no camera. So after opening up the seal, you can only able to understand that okay, this was open, and you will assume this fact that okay, since it was open, so guest might have consumed it. So let's throw it. क्यों रिस्क लेना है? क्योंकि अगर ये खुला हुआ सील किसी के पास पहुंच जाए तो what will happen? The guest will raise a complaint. That's the main reason. इसके अलावा you can also find there is something called 3 compartment dish. इसमें you can see that, let's take an example. If it is a Western style, तो यहाँ पे होगा mustard, ketchup, mayonnaise. और if it is an Indian style, यहाँ पे होगा आपका coconut चटनी, tomato चटनी और mint चटनी. तो ये ऐसे करके पहले से, like when I used to work in Trident Jaipur या फिर उदय विलास पे जब मैं था, तो हम लोग मॉर्निंग नाइट शिफ्ट का ये काम होता था कि ऐसे कम से कम 50 3 कंपार्टमेंट डिश को वेस्टर्न स्टाइल और इंडियन स्टाइल में फिल अप करके फ्रिज के अंदर पहले से रख दे. बिकॉज व्हाट विल हैपन इन दिस केस, इट इज बिकमिंग वेरी इजी. उसको क्लीन रैप करके हम छोड़ देते थे. So whenever there is an order, you need to fill it up because you don't understand how busy it will be. You don't get a chance to fill up a single thing. तो तब हम क्या करते हैं, हम इसको भर के उसको पहले से रख देते हैं. जैसे ही ऑर्डर आया, we'll take it out from the refrigerator, place it on the tray, and चलो let's shoot the order. Okay, and then we got the tea cozy cover. आप यहाँ पे देख सकते हो इसको, tea cozy cover. It just made out of a wool से बनता है. Now why it is made out of wool? इस wool से बनने का कारण यही है कि because it will hold the temperature of a teapot. अगर teapot के अंदर कोई tea cozy है, it will going to hold the temperature for a long time. ठीक है? So this is the main thing. Okay, right? So that's the reason tea cozy cover is used. अच्छा, किसी ने मुझे ये सवाल नहीं पूछा कि सर अगर हम ये रूम सर्विस में हम आपने दिखाया कि सर ये फ्लास्क हम यूज करते, तो ये फ्लास्क को क्या पूरा कवर करते हैं क्या अपन टी कोजी से? व्हाट इज योर कॉल ऑन दिस? हेलो पीपल, सो गए क्या सब लोग? फ्लास्क को कवर करना इन द सेंस? ओके, यस प्लीज पीपल, प्लीज आंसर द क्वेश्चन. प्लीज रिपीट द क्वेश्चंस वन. मैं क्वेश्चन ये मेरा सवाल है, वो सवाल मेरा ये, अगर इतनी बड़ी एल्फी है मेरे पास, फ्लास्क है, इसके अंदर ऑलरेडी हॉट वाटर है, तो उसको कवर करने के लिए टी कोजी चाहिए क्या हमें? किसके लिए चाहिए? व्हाई सडनली वी नीड अ टी कोजी कवर? हाँ, कहाँ गए सब लोग? पीपल, if
you slept, please wake up and answer this question. थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कीजिए, मिल जाएगा आंसर. सर डेफिनेटली उसका फ्लास्क speed retake रहा है. तो अच्छा ठीक है. फर्स्ट आई स्टार्ट विद आयन कुरैशी, प्लीज बोलिए. सर डेफिनेटली फ्लास्क को कवर करने के लिए तो नहीं होगा टीकोजी, क्योंकि फ्लास्क तो खुद ही अपने आप को कोल्ड और हॉट रहता है, रिटर्न करता है वो टेम्परेचर. एब्सोल्युटली राइट. ओके. हाँ, सर नाउ उसको या प्लीज. के लिए यूज कर सकते हैं. सॉरी, सोसर में सर, सोसर. सॉसर में नहीं, सॉसर में तो यूज नहीं कर सकते. ओके, एनीबॉडी एल्स पीपल? कोई और है? एनीबॉडी आंसर दिस क्वेश्चन? चलो, एवरीबॉडी बिकम स्लीपी, हाँ, बिकॉज ऑफ दी लंच के बाद क्लास है इसलिए. ओके, चलो ठीक है. So yeah. one thing we can think of like that, the guests don't want to consume the tea right now. Like for instance, he don't want to consume the tea. So आगे के लिए मतलब अगर इसको आगे मतलब forward he has to consume. So for that reason maybe गर्म हाँ. रहने के लिए. हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन मेरा मतलब लाइक जो सवाल ये है कि अगर हमारे पास फ्लास्क है तो ऑलरेडी हमें टी कोजी की क्यों जरूरत है? नाउ एज यू हैव सेड मिताली दैट द फ्लास्क विल होल्ड द टी फॉर अ लॉन्ग टाइम. ओके, लेट मी टेल यू दिस थिंग. दिस आंसर इज समथिंग लाइक दिस के टी कोजी कवर की जरूरत क्यों पड़ती है जब हमारे पास ऑलरेडी फ्लास्क है? रिमेंबर वन थिंग, अगर समझ लो किसी गेस्ट ने ऑर्डर किया हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा, मसाला चाय और कॉफी विथ मिल्क, ऑल दिस थिंग, ये जो प्रीमिक्स ड्रिंक्स है ना, दिस आर सर्व्ड इन द फ्लास्क. दूध वाले जो जितने सारे प्रोडक्ट होते हैं जिसको हम कहते हैं प्रीमिक्स, ब्लैक कॉफी विथ मिल्क, मसाला चाय, ऑल दिस थिंग. Whereas in case of this cozy is used in a pot. पॉट वही पॉट होता है जो सेरामिक्स से बनता है. तो सेरामिक पॉट का एक प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम है? सेरामिक पॉट माइट लुक रियली एक्सेलेंट, बट एसी के अंदर, एसी के नीचे आप सेरामिक पॉट को बस 5 मिनट के लिए छोड़ दो, सेरामिक पॉट के अंदर जितने टी कॉफी है वो सारे ठंडा हो जाएगा. इसलिए सेरामिक पॉट को यूज किया जाता है ओनली फॉर दी हर्बल टीज. व्हाट आर दी हर्बल टी? कौन बोल सकता है? हर्बल टी कौन कौन से है? Green tea. ग्रीन टी, ओके. ओलिंगो ट्री. उलोंग ट्री, राइट, ठीक है. और यस सर, ओलोंग टी. yeah, oolong tea, green tea, then there is something called chamomile tea, all this thing known as an herbal tea. So this herbal teas are actually served in that ceramic pot and then it is covered with the cozy. Then we'll follow the Mitali Poddar concept कि जब वो टी रूम के अंदर जाएगा तो वो रूम के अंदर ही रहेगा, एंड देन गेस्ट फील दैट ठीक है मैं थोड़ी देर बाद इसको कंज्यूम करूंगा, देन ही और शी विल कंज्यूम. ये है बेसिक कंसेप्ट. ओके पीपल, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. All right, so now we go back to our point again. That is the कहाँ थे हम लोग? यहाँ. Okay, so that is the main reason tea cozy cover has been used. Now, people, this is also a very interesting question that how you made a tea cozy cover. Tea cozy cover जो है वो woolen material से बनता है. Wool से सबसे ज़्यादा ठंड को आप कवर कर सकते हो. Naturally जब आपको सर्दी लगती है तो आप obviously टी-शर्ट तो पहनते नहीं हो. You will wear a woolen jacket, sweater or something like this. Same way, जब टी पॉट को ठंडा लगता है तो वो टी को कोजी पहनता है. ओके, राइट. इट्स अ वेरी वेरी एरिस्टोक्रेटिक एंड आल्सो वेरी वेरी हाई क्लास स्टैंडर्ड सर्विस जहाँ पे ये टी कोजी प्रोवाइड किया जाता है. एंड इट इज वेरी हार्ड टू मेंटेन बिकॉज द कलर इज ऑलवेज वाइट, और वाइट कलर तो बहुत बहुत गंदा होता है जल्दी जल्दी. ओके, दिस इज द मेन प्रॉब्लम विद द टी कोजी. So that's about the equipments which we generally see in a room service. ठीक है. Now we'll go for the room service procedures. Mise en place activity basically क्या होता है? The step one is basically the stacking. So this has happened from the night shift onwards. So when the night shift knows that morning shift is about to come, so 4 o'clock in the night, it starts wiping off all the chinaware, glassware, cutlery.
कप्स एंड ग्लासेस एंड एवरीथिंग। उसके बाद पॉलिशिंग ऑफ कटलरी होता है, टी स्पून पॉलिश करता है, बटर नाइफ, स्पून फोर्क, सब कुछ वो क्लीन करता है। ओके, आफ्टर दैट ही स्टार्ट टू फिल अप कॉन्डिमेंट्स। दिस इज द मोस्ट डेंजरस थिंग। मतलब फिलिंग अप कॉन्डिमेंट्स अगर सही से, अकम्पेनिमेंट एंड कॉन्डिमेंट्स अगर सही से फिल अप नहीं है आईआरडी में, आईआरडी जस्ट गोइंग टू लाइक कंप्लीटली लॉकडाउन करना होगा सीधी भाषा में। अगर आप मॉर्निंग में आके आपका ट्रे सेट है, एवरीथिंग इज सेट, बट योर condiments are not filled up like sugar, like butter, like preserve, salt and pepper, then आपको बोलना होगा कि आज के लिए रूम सर्विस हमारा बंद है, हम कुछ नहीं कर सकते, सीधा सरेंडर। और ऐसा मैंने सिचुएशन देखा है जहां पे हम सरेंडर तो नहीं करते लेकिन वी विल फेस अ टेरिबल प्रॉब्लम। तो क्रूएट सेट बेसिकली सॉल्ट एंड पेपर, वेयर वी ऐड अ सॉल्ट एंड पेपर इन द क्रूएट सेट, देन वी हैव गॉट अ condiments with us जहां पे हम टमाटो, केचप, मस्टर्ड ये सब भर के रखते हैं। If it is a morning breakfast, then obviously it get changed. Morning breakfast में जैम, हनी, मामलेट होता है, और डिनर टाइम पे और लंच टाइम पे वही चेंज हो जाता है। दैट कॉन्डिमेंट बोल विल ट्रांसफर टू इंडियन स्टाइल प्रिपरेशन जहाँ पे हम पिकल डालते हैं, मिंट चटनी, पापड़ ये सब डालते हैं। ओके, देन वी हैव गॉट बटर डिशेस। ओके, बटर डिशेस, butters are cut, it is sprayed on this thing, and then toasted racks and all. Then okay, step 3 से जाने से पहले, 4 जाने से पहले, there is a quiz. Okay, people just wake up and answer this quiz. देखते हैं आज क्विज का सवाल क्या है। What's the French name of pineapple? Pineapple का French name क्या है people? Ananas, sir. Ananas, that's right answer. Who is it? Ayan. And that's an answer, right? Okay, अंकिता, थोड़ा सा इंटरनेट में प्रॉब्लम हो गया था लग रहा है, तभी the answer didn't came on time. Okay, so Ayan, that's a fantastic answer. It's ananas, known as a pineapple. People, please start reading those French glossary terms which I've already sent to you. ठीक है, उसमें MCQ question आने का बहुत chances है. All right. Next, we go to the step number 4. Step number 4 is once again another essential part, tea coffee preparation. Basically क्या होता है कि there is a machine which always known as a Sisselware. इस machine के बारे में आपको सुना रहा हूँ, this is the first time you are hearing this thing, Sisselware. Sisselware is something where there is, there is a 2 container, 20 लीटर के 2 container होता है, and that container is run by an electric charge. So basically you fill up your coffee, you fill up your tea and fill up your milk, भर के उसको रख दो और सुबह 6 बजे उसको ऑन कर दो। ब्रेकफास्ट टाइम तक वो आपके लिए कंटिन्यूअस चलता रहेगा, कंटिन्यूअस ब्रेकफास्ट टाइम के लिए वो चलता रहेगा, एंड इट विल गिव यू द वेरी वेरी हॉट टी एंड कॉफी। और ये आईआरडी में यूज होता है ये। ओके, रेस्टोरेंट में भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें बेसिकली 3 कंपार्टमेंट होता है, 1 इज फॉर द हॉट वाटर, 1 इज फॉर द कॉफी एंड 1 इज फॉर द मिल्क। अगर कोई चाहे तो कॉफी कंजम्पशन ज्यादा है, जैसे कि समझ लो व्हाट यूज्ड टू डू इन द होटल, सर्दियों के टाइम पे हम देखते थे पीपल व्हेन वी हैव अ मोर फॉरेनर गेस्ट इन द होटल, बिकॉज जयपुर में क्या होता था कि विंटर के टाइम पे बहुत फॉरेनर्स आए थे, एंड दे विल प्रेफर, मतलब 90% ऑफ देम यूज्ड टू हैव अ कॉफी ऑल द टाइम। सो हम क्या कर देते, वी यूज्ड टू पुट द सिसलवेयर, एक साइड में हम पूरी कॉफी डाल के छोड़ दे देते, एंड वन साइड में देयर इज अ मिल्क एंड इन द मिडिल देयर इज अ hot water. So it's very easy. Take out milk, take out coffee, and just go and serve. So within 3 minutes of time, a tea coffee can reach to the guest room, because that is a standard time. Sorry, room service के केस में ये 5 मिनट हो जाता है. Okay. Then obviously then you butter spoon filling up cruet set and cutlery. उसके बाद आप toasted rack में जाओगे. Toasted rack में जाने के बाद you will clean all your toasted racks. उसके बाद कि toasted rack पे toast रखने के कारण वो ना काला हो जाता है. And after that there is a brown bread, white bread. You take these breads from the chef and you can keep it already ready and set. Followed by there is a setting up of tray and trolley. Then you pre-set some trolleys and tray properly. पहले से आप उसको salt and pepper cutlery डाल के उसको set करके रखते हो. In case if a guest orders, so that you need not to set everything again. It is just like a pre-plan. मतलब कहने का मतलब ये कि मेरा अगर वैकेशन शुरू हो रहा है जुलाई से, तो क्यों मैं 31 जून को टिकट बुक करता हूं? करना नहीं चाहिए ना, मुझे अभी
टिकट बुकिंग जो है वो अभी कर लेनी चाहिए, बिकॉज अभी टिकट अवेलेबल है. इट्स इज लाइक ए प्री प्लानिंग. तत्काल में टिकट मिल जाएगा, आई नो, बट व्हाई टू टेक अ चांस ऑन तत्काल? अगर तत्काल अगर मिस हो गया तो मे बी आई विल नॉट एबल टू ट्रैवल. सो इट्स बेटर हम पहले से इसको बुक करके रखते हैं. इसलिए पहले से इसको सेट करके रखा जाता है, बेसिक सेटअप डाल के. ओके, इसे हम कहते हैं वो बेसिक सेटअप, जो आपके स्क्रीन के ऊपर अभी आ रहा है. मिजन प्लेस फॉर ट्रे. अगर कोई ट्रे सेटअप है मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में, तो बाय डिफॉल्ट हम ये सारी चीजें उसके ऊपर सेट करके रखते हैं. ये देखिए एक ट्रे है, उसमें एक कप एंड सॉसर है, देयर इज अ जैम, हनी, मार्मलेट, ये सब कुछ रख दिया हमने. क्रूएट सेट एंड देयर इज अ बड़वास. इतना लंबा बड़वास तो होता नहीं, छोटा ही होता है. कटलरी में हमने वी हैव पुट ऑलरेडी नाइफ एंड फोर्क, ब्रेड बास्केट, चाय एंड कॉफी. सो हमने पहले से ऐसे 5-6 ट्रे, वी विल 10 trays at least, we'll keep it like this, because morning breakfast, if there naturally there is a order of tea and coffee is must. So basic on this common sense, people keep these trays ready as a mise en place. Simple कहानी है और कुछ नहीं. अगर ये ट्रे होती है तो फिर ट्रॉली क्या होता है? ये देखिए, ट्रॉली को हम फिर ऐसे सेट करके रखते हैं. जनरली वी नो वंस अगेन के ऑर्डर फिर से आएगा. So let's take an example. ये देखिए एक ट्रॉली सेटअप है, जो पिक्चर नंबर 2 जहां पे मेरा where my mouse is hovering around. So ये जो एरिया है यहाँ पे we have set this trolley for 4 guests. Although only 1 या 2 guests will order, but still will set the cover for 4 guests. पहले से हमने इसको सेट करके रखा है. अब मैंने देखा कि गेस्ट has ordered for eggs and sunny side up and all everything tea coffee, तो मेरा ऑर्डर अचानक से चेंज हो गया. ऐसे मैंने सब कुछ डाल दिया. ये ब्रेकफास्ट के लिए एंड दिस इज फॉर द डिनर. सो डिनर टाइम के लिए ऑल दिस थिंग विल नॉट बी देयर, बिकॉज डिनर टाइम पीपल विल नॉट कंज्यूम टी एंड कॉफी. दे विल ओनली consume food and all, salt and pepper, everything. That's why this thing has been set. But otherwise, in case of a morning breakfast, we'll preset the cover like this. Okay, this is known as a mise en place for the trolley. इसके बाद फाइनली वी रीच अप टू द नेक्स्ट थिंग, ऑर्डर टेकिंग ऑफ रूम सर्विस. रूम सर्विस में हम कैसे कैसे ऑर्डर ले सकते हैं? देयर आर बेसिकली 3 ways टू टेक द रूम सर्विस ऑर्डर. द फर्स्ट वन इज अ डोर नॉब कार्ड. इसके बारे में पहले बहुत लोगों ने सुना होगा. डोर नॉब कार्ड का मतलब होता है, देखिए जस्ट लाइक दिस, ऐसा एक डोर नॉब कार्ड होता है जहाँ पे ब्रेकफास्ट में, ये जो गेस्ट का रूम के अंदर जो मिनी बार होता है, मिनी बार के ऊपर एक ड्रॉयर रखा होता है, उसके अंदर ये सारे कार्ड्स होता है. उसमें आपका लॉन्ड्री ऑप्शंस भी होता है, उसमें आपका ब्रेकफास्ट मेनू कार्ड होता है. आपको रात को गेस्ट व्हाट ही विल डू, रात को सोने से पहले ही विल टिक ऑल दिस थिंग कि मुझे क्या क्या चाहिए कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट में एंड दिस थिंग, एंड देन विल हैंग इट अराउंड इन दिस डोर. ये देखिए जैसे कि इसने हैंग करके रखा है. सो अब क्या होगा, रात नाइट शिफ्ट लाइक अराउंड लाइक 4 o'clock और समथिंग, ही विल टेक अ फ्लोर राउंड. फ्लोर का राउंड लेगा पूरे, कोई क्लियरेंस, कोई ट्रे या फिर कोई प्लेट्स रखा तो नहीं है. एट दैट टाइम he will encounter that these are the doorknob cards are lying on the door. So he will pick up this doorknob cards and he will hand it over this to the room service team, which will come on the morning. अब समझ लो यहाँ पे टाइम लिखा है 6 o'clock. उसे पता है कि मॉर्निंग शिफ्ट 7 बजे आने वाली है, तो अगर 6 o'clock अगर टाइम दिया है तो ऑब्वियसली दैट पर्सन, आई मीन दैट नाइट शिफ्ट विल ओनली सेट द ट्रे. बिकॉज रिमेंबर वन थिंग, रात को रूम सर्विस में ओनली 2 ही स्टाफ होता है, whereas in the morning shift there will be like 6 staff and all. So morning when night shift knows के okay I have to handle it my own, so previously पहले से वो order set करके रख देगा. So that is what happening also here, that 6 o'clock he knows that there is a chance of the guest will place the order, so पहले से उसने यहाँ पे टिक किया, तो that night shift has to deliver this breakfast order. If it is after 8 o'clock or 7 o'clock, then it is okay. He will hand it over this. ठीक है, तो ऐसे टिक कर देता है. जो नाइट शिफ्ट उसको फ्लोर राउंड के टाइम पे 4 o'clock से वो लेके आ जाता है. बट रिमेंबर वन थिंग, अगर ये गलती से नाइट शिफ्ट के हाथ से मिस हो गया तो इट्स अ बिग मेस, बहुत बड़ी मेस. मेरे हाथ से खुद मिस हुआ है तो मुझे मालूम है व्हाट हैपेंड एक्चुअली. ओके, तो द गेस्ट हैज प्लेस्ड दिस. ओके, गेस्ट ने ऐसे डोर नॉब कार्ड में टिक करके रख दिया और 7:30 को लिख दिया कि मुझे 7:30 ब्रेकफास्ट है यहाँ पे. अब नाइट शिफ्ट को मैंने फ्लोर राउंड के लिए गया, रात के टाइम पे, आई समहाउ मिस्ड इट.
कोई कुछ मैं शायद कुछ दिमाग में कुछ सोच रहा होगा उस टाइम पे, इसलिए मैं देख के भी नहीं देखा उसको. Next morning at 7:30 when the breakfast didn't arrive at the room, suddenly that guest has called to the RSOT cabin that what happened to my order. Then we came to know that it is already hanging on the door. Okay, this is the main thing that happened. The guests complained very badly, obviously, naturally, poor service, pathetic service, staffs are not allowed, all these things. Okay, so now what are the advantage of this style? इसका advantage ये है कि सबसे इजी चीज ये कि ये गेस्ट फिलअप करता है, तो नेचुरली कोई गलती की कोई गुंजाइश तो है ही नहीं. गेस्ट ने ऑर्डर दिया है भाई, हमने ऑर्डर तो लिया नहीं है. मतलब सिंपल बात है कि समझ लो ये अपना मुस्कान ने राहुल को ऑर्डर प्लेस किया कि आई वांट प्लेन ब्राउन ब्रेड सैंडविच विद टमाटो, हैम, चीज एंड प्लेन ऑमलेट एग वाइट विथ only mushroom and टमाटो. अब समझ लो राहुल से गलती से ये बात मिस हो गया, मशरूम एंड टमाटो के बदले उसने मशरूम याद रखा, टमाटो भूल गया. अगर गेस्ट ने उस ऑर्डर को चेक किया तो उसे टमाटो नहीं मिला तो ही लेज अ कंप्लेंट. अब राहुल विल से नो मैडम यू हैवंट सेड, गेस्ट विल से नो आई हैव सेड. नेचुरली इज दिस केस में गेस्ट इज ऑलवेज गॉड, सो राहुल विल बी हेल्ड अप फॉर दिस कंप्लेंट. बट इन केस ऑफ दिस ऑर्डर, सर आपने ही तो ऑर्डर प्लेस किया है, मैं क्या कर सकता हूं. ठीक है, सो गेस्ट अगर कोई ऑर्डर देना भूल जाता है तो ये गेस्ट की गलती है. बहुत ही अच्छा सिस्टम है मेरे हिसाब से ये. देन फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज प्री ऑर्डर्ड और इसे हम कहते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर. होटल में आप जब जाओगे तो इस शब्द का आपको बहुत यूज दिखेगा, इसको हम कहते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर. कल आपके सामने ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन IT इंटरव्यू एनीवेयर एल्स दैट व्हाट इज अ स्टैंडिंग ऑर्डर. स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब वही होता है कि समझ लो गेस्ट ने आपको ऑर्डर दिया है कि मुझे अभी मैं आपको 2:30 बजे ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं, लेकिन मुझे ये खाना जो है वो चाहिए रात के, वो मुझे वही चाहिए मुझे शाम के 4 बजे. इट्स लाइक अ स्टैंडिंग ऑर्डर. जैसे कि समझ लो स्विगी में ये ऑप्शन है जहां पे आप ऑर्डर को बुक करते हो कि आई वांट दैट ऑर्डर टू बी, सर समझ लो लेट्स से यू वांट टू ऑर्डर फॉर द बिरयानी. आपको पता है कि शाम को बिरयानी मिलने वाला है नहीं, तो आपने क्या किया, अभी 2:30 बजे क्लास होने के बाद, FMB क्लास होने के बाद आपने स्विगी में जाके ऑर्डर बुक कर दिया और आपने कहा नहीं डिलीवरी मुझे 10 o'clock ही करना, रात के 10 o'clock. तो इसे हम कहते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर. ठीक है, सो व्हेन यू प्री प्लेस योर ऑर्डर due to the fact that the order might not available in the later time, those are known as a standing order. ठीक है, so the chef and server जो है वो पहले से समझ जाता है कि स्टैंडिंग ऑर्डर कितना है और उस हिसाब से प्रीपेड होता है. इस पे क्या होता है, ऑर्डर कभी डिले नहीं होता, टाइम पे पहुंचता है. एंड द नंबर ऑफ द ऑर्डर इज ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड. कितने मेरे पास, मतलब बेसिकली द थिंग इज दैट आई नो व्हाट आई नीड टू प्रिपेयर. इट्स अ वेरी वेरी सिंपल थिंग. अगर हमारे पास सुबह मॉर्निंग में KOT जो हैंगर है वहां पे अगर 10 डोरनॉब का कार्ड हो तो किसी को कोई टेंशन नहीं है कि सबको पता है कि ये ऑर्डर इतने बजे जाना है. लेकिन अगर मॉर्निंग में वो KOT हैंगर में 5 अगर नॉर्मल KOT ऑर्डर आ जाए तो सारे शेफ की परेशानी शुरू हो जाती है, बिकॉज इट इज जस्ट केम जस्ट इन अ व्हाइल विदाउट गिविंग यू एनी प्रायर इंफॉर्मेशन. डोरनॉब कार्ड आपको पहले से प्रायर इंफॉर्मेशन दे देता है. ओके, इवन अभी ऐसा होता है कि 5 स्टार होटल में अभी ऐसा होने लग गया, जैसे हम लोग करते थे कि मुझे पता है मॉर्निंग रात के 3 बज रहा है, मेरे हाथ में डोरनॉब कार्ड है, तो जिन जिन लोगों का डोरनॉब कार्ड का ऑर्डर है हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप में रात के 3 बजे फूड प्रोडक्शन और FMB का जो ग्रुप होता था हमारे होटल में, हम रात को ही भेज देते, सो दैट मॉर्निंग में शेफ की जब नींद खुलेगी तो शेफ सबसे पहले देखेगा कि ओके आज मेरे पास 10 डोरनॉब कार्ड के ऑर्डर है जो मुझे रेडी करना है, तो फिर वो रेडी पे करके ऑर्डर वो पहले से प्रिपेयर होके आएगा. सो व्हेन यू प्रिपेयर फॉर समथिंग देयर इज नो कंप्लेंट. व्हेन यू नॉट प्रिपेयर फॉर समथिंग दैट्स वेयर द प्रॉब्लम हैपेंस. ठीक है, देन वी गॉट अ डिसएडवांटेज. क्या है इसके बाद, क्या कि सबसे पहले प्रॉब्लम ये कि देखो यहाँ पे ये जो डोरनॉब कार्ड मेन्यू आपको दिख रहा है, यहाँ पे गेस्ट के लिए बड़े चॉइसेस बहुत कम है. दैट्स अ बिग प्रॉब्लम. देन देयर इज नो टू वे कम्युनिकेशन, अनदर वेरी वेरी डेंजरस थिंग, टू वे कम्युनिकेशन. देखो ये चीज को आप ध्यान से समझना. टू वे
कम्युनिकेशन ना होने के कारण क्या समस्या होता है। यहाँ पे लिखा है बेकन, यहाँ पे लिखा है सॉसेज, यहाँ पे लिखा है एग, टोमेटो, मशरूम। अगर कोई फॉरेनर गेस्ट है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर कोई यूरोपियन है और अमेरिकन है, उनके साथ पता है क्या प्रॉब्लम है, वो सॉसेज देख के यही समझेगा कि ये पोर्क सॉसेज है। लेकिन इंडिया में पोर्क सॉसेज अगर आप पहले से ऑर्डर नहीं करोगे तो पोर्क सॉसेज नहीं आएगा, आपके पास चिकन सॉसेज ही जाएगा बाय डिफॉल्ट। एक बार ऐसा ही हुआ था मेरे होटल में। तो क्या हुआ कि लाइक द guest has ordered and we served them chicken sausage. Suddenly the guest calls up and says that I thought that the pork sausage will come. He said there is a sausage we serve standard wise chicken sausage. बोले नहीं, ये तो गलत बात है ना, आपको तो यहाँ पे लिखना चाहिए था पहले से कि we only serve chicken sausages in our hotel, not the pork. That's our problem. Next thing, once again, cheese and mushroom omelette. देखो, ऑमलेट हम इंडिया में कैसे खाते हैं, दोनों साइड एकदम मसाला कुक करके पूरा ब्राउन करके खाते हैं ना। फॉरेनर्स पता है कैसे खाता है, एक साइड कुक करता है, दूसरी साइड कुक नहीं करता है, स्लाइटली वाटरी वो रहता है। बट when we take a order, we also ask this question, you want your omelette to be done well cooked, medium cooked or runny with the egg yolk? हम ये चीज भी पूछते हैं। A good IRD order taker will ask this question also, but naturally it doesn't happen like that, so it also turned out to be a problem. ये होता है, मतलब आप गेस्ट के बारे में जान नहीं पाते हो गेस्ट को चाहिए क्या होता है। Naturally you assume everything, sometimes the assumptions are 100% correct, sometimes assumptions are 80% correct. Okay, then we go to the next one, which is order taking through phone. Now people, this is the art of order taking. I really love this thing. मुझे सबसे अच्छा लगता है ऐसे ऑर्डर लेना। मतलब मैंने बैंक्वेट में ऑर्डर लिया है, मैंने बार में ऑर्डर लिया, रेस्टोरेंट में ऑर्डर लिया, बट दिस इज द बेस्ट वे टू टेक द ऑर्डर। ओके, ये जो आपके सामने यू कैन सी, दिस इज द एरिया वेयर दिस पर्सन इज टेकिंग द ऑर्डर। दिस इज नोन एज अ RSOT केबिन और रूम सर्विस ऑर्डर टेकिंग केबिन। ठीक है, सो इस आदमी को कहा जाता है RSOT, रूम सर्विस ऑर्डर टेकर। और ये यहाँ पे देखिए फोन से इसके जरिए ऑर्डर। अभी यहाँ पे आपको एक आदमी दिख रहा है, बट जनरली यहाँ पे मोर देन 1 पर्सन होता है, 2 पर्सन तो इन ए शिफ्ट इज कंफर्म होगा ही आपका। ओके, सो यहाँ पे इसके सामने ये नोटिस बोर्ड है, यहाँ पे सारे डिशेस के नाम और प्राइसेस लिखे हुए, एंड ही इज टेकिंग द ऑर्डर इन दिस piece of paper or register. And let me tell you one thing, this is the best way. I mean, like, if you want to learn how to take order, you need to work in room service. Okay, यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो सर्वर या फिर एफएमबी का आदमी जो यहाँ पे बैठा है, he has to know full menu by default. इसलिए मैंने आपको पहले वीडियो दिखाया था कि why we need to know. सडनली रजत सर हमें क्यों एक टार्टिन का वीडियो दिखा रहा है, जबकि ये सब चीजें फूड प्रोडक्शन का काम है। नहीं, इसका काम यहाँ पे भी बहुत जरूरी है। They will ask you each and every question about the food. Simple thing, they'll ask you this question: the beef or the meat that you serve in your hotel are from Jhatka or from the halal? Naturally, you don't have any answer because you are not the chef. वो आपसे ये भी पूछता है, अच्छा आपके होटल में जो चिकन आता है ये कौन से कंपनी से आता है? Okay, so there is a packaged chicken system. होटल में जो आता है, जैसे कि समझ लो ओबरॉयज मैक्सिमम चिकन जैसे गोदरेज से आता था, गोदरेज आल्सो सेल द चिकन। और मैरियट्स में आता है, वेनकॉप बोल के एक ब्रांड है, वहां से आ रहा है। ओके, सो द एडवांटेज इज बट लेकिन इसका बहुत एडवांटेज भी है, इसमें 2 वे कम्युनिकेशन है। डिशेस कैन बी वेरी नाइसली एक्सप्लेन। आप चाहो तो सजेस्टिव सेलिंग कर सकते हो या फिर अप सेलिंग भी कर सकते हो कि सर व्हाई यूड लाइक टू ट्राई। आप आज पहली बार होटल में आए हो, राजस्थान में आए हो आप, या फिर आप इंडिया में आए हो, तो आप इंडिया की नॉर्थ इंडियन थाली आप एक बार ट्राई कीजिए। सो मे बी द गेस्ट इज ऑर्डरिंग फॉर 1 दाल तड़का एंड लाल मास। अगर आपने उसको नॉर्थ इंडियन थाली पूरा बेच दिया तो दाल तड़का का प्राइस है 700 रुपए, लाल मास का है 950 रुपए। लेकिन अगर आपने थाली बेच दिया तो इट विल कॉस्ट यू 1250 प्लस टैक्सेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। देन नेक्स्ट थिंग इज दैट guest will have a like a dietary requirement of the guest can be noted. So let's take an example. Guest ने मुझे कहा, people, question for everyone, सबके लिए सवाल है। guest ने मुझे ये सवाल पूछा
कि कैन आई गेट अ ग्लूटेन फ्री इंडियन ब्रेड, आप कौन सा रोटी सजेस्ट करोगे? ग्लूटेन फ्री इंडियन ब्रेड्स गेस्ट ने कहा है, तो कौन सा ब्रेड आप सजेस्ट करोगे इन दिस पॉइंट? ब्रेड। व्हिच वन मुस्कान? ब्राउन। नो, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन ब्रेड। कौन सा रोटी, नान, पराठा आप सजेस्ट के करोगे? मक्के की रोटी। मक्के की रोटी, मक्के की रोटी, राइट, यस, दैट्स आल्सो राइट आंसर। हेमा तोमर, yes, Hema Tomar, that's right answer. It's makke ki roti. Rahul also right. और सर आयान। अच्छा आयान, ओके। और कौन सी आंसर? और somebody else? सर जवार की रोटी। जवार की रोटी, एब्सोल्युटली राइट, सेकंड आंसर, ओके। बाजरे की रोटी, एक्सेलेंट आंसर, ओके। और क्या आप ऑर्डर कर सकते हो? अंकिता, फैंटास्टिक आंसर। सर रागी की रोटी। हाँ, बेसन की रोटी। अच्छा, बेसन की रोटी को क्या कहा जाता है? मिस्सी रोटी। Amazing, Rahul. Amazing, Rahul. It's missi roti. Yes. हाँ, सत्तू भी हो सकता है। पालक की रोटी। लेकिन अंकिता, सत्तू को होटल में इतना यूज नहीं किया जाता। नेचुरली माना जाता है कि वो क्वालिटी के साथ मैच नहीं करते। बट यस, मिस्सी रोटी कैन बी यूज। सो मिस्सी रोटी, बाजरे की रोटी, मक्के दी रोटी, ये सारी चीजें जो है आपकी ग्लूटेन फ्री breads है which you can use. Okay, right? So that's how the fact is about the gluten free. So ये जो dietary requirement होता है, because यूरोपियन कंट्रीज के लोगों के अंदर ये ग्लूटेन का इंजेक्शन लेते हैं, बिकॉज दे कहते हैं कि उनके ग्लूटेन का प्रॉब्लम कैन लीड टू लॉट्स ऑफ ब्लड प्रेशर एंड हाई प्रेशर एंड एवरीथिंग। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल। पीपल हैव अ एलर्जी टू नट्स। तो नट्स से जिनका एलर्जी है, आप उनको जैसे कि समझ लो काजू बर्फी, उसके बाद लेट्स टेक एन एग्जांपल चॉकलेट ब्राउनी। तो चॉकलेट ब्राउनी के अंदर होता है वॉलनट, वॉलनट आप सजेस्ट नहीं कर सकते। ओके, सो ऑल दिस थिंग कैन बी यूज्ड। Then you also have disadvantages, that is known as what is the disadvantage? ये सबसे बड़ा disadvantage है जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर अभी दिख रहा है। इसमें क्या होता है? रूम सर्विस, टेलीफोन बिजी। एक आदमी है तो मौत है। अगर समझ लो दो आदमी एक साथ वहां पे ऑर्डर टेकिंग कर रहा है और समझ लो उसी सेम टाइम पे दोनों फोन बिजी आ रहा है, तो फोन बाउंस होके पहुंच जाएगा रिसेप्शन में, फ्रंट ऑफिस पे। अब फ्रंट ऑफिस क्या करता है? फ्रंट ऑफिस इस चीज को एफएमबी को आके कहेगा कि भाई आपका कॉल देखो बाउंस हो रहा है। फ्रंट ऑफिस क्या करता है? हीरो बनने के चक्कर में व्हाट दे डू, दे स्ट्रेट अवे इन्फॉर्म टू द जीएम और स्ट्रेट अवे इन्फॉर्म टू द फूड एंड बेवरेज मैनेजर कि सर आपके डिपार्टमेंट के स्टाफ ये ऑर्डर पिकअप नहीं कर रहे हैं। नेचुरली विच लीड्स टू फाइट अगेन। तो फ्रंट ऑफिस के साथ भी एफएमबी डिपार्टमेंट का बनता नहीं है सही से। तो मैं ये खुद अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ये नेचुरली होता है होटल्स में, इसलिए मैंने खुद देखा है तभी बोल रहा हूँ। वो मतलब दे वांट टू गेन सम पॉइंट और दे वांट टू दैट वी आर टेकिंग केयर ऑफ द गेस्ट इन अ बेटर वे। लेकिन गेस्ट का ऐसा कुछ नहीं है। गेस्ट को वहां से इंस्ट्रक्शन आ रहा है फोन में, द लाइन इज बिजी, द लाइन इज बिजी। वो लाइन ट्रांसफर होके पहुंच जाता है रिसेप्शन के पास। रिसेप्शन वो फोन पिकअप करता है तो वो कहता है कि नहीं वी आर नॉट दिया। लेकिन आइडियली क्या करना चाहिए फ्रंट ऑफिस को? जो ऑर्डर वो देगा, समझ लो कैन आई गेट सम स्पून, कैन आई गेट सम रोटी दाल, ये सब लिख के उसका रूम नंबर लिख के इमीडिएटली रूम सर्विस के पास पहुंच जाना चाहिए कि मैडम और सर ये देखिए ये ऑर्डर है जो गेस्ट ने दिया है और प्लीज आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। लेकिन वो एक्चुअली होता नहीं है। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ठीक है। बट इसकी कोई हल नहीं है बेसिकली, यू नो व्हेन, बट एक ही रास्ता है। सपोज जब आप फोन में बात करते हो, लेट्स टेक एन एग्जांपल, अंकिता इज टॉकिंग टू द फोन विद मुस्कान and suddenly that time Ayan is calling to Muskan. So what will happen? Muskan will get a notification कि Ayan उसको कॉल कर रहा है। तो जैसे ही कॉल डिस्कनेक्ट अंकिता के साथ हो जाएगा तो मुस्कान will call back to the Ayan again. तो ऐसे ही रूम सर्विस पे दिस पर्सन के जो फोन है यहाँ पे उसका नंबर ब्लिंक कर रहा है कि मिस्टर शर्मा रूम नंबर 304 इज कॉलिंग। सो उस टाइम पे ये आदमी क्या करेगा? इसको एक पेन के साथ एक पेपर में लिख के रखेगा एंड देन आफ्टर डिस्कनेक्टिंग द कॉल ही विल स्ट्रेट अवे कॉल टू दिस पर्सन। दिस वे यू कैन एटलीस्ट अवॉइड दिस सिचुएशन। ओके,
सो लैंग्वेज ऑफ द गेस्ट का कभी कभी क्या होता है कि कोई अगर स्पेनिश ने फोन कर दिया तो वो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। ओके, जैसे कि समझ लो एक बार क्या हुआ था कि एक ब्रिटिश इंग्लैंड के आदमी ने मुझे ये कहा था कि कैन आई गेट अ बुलसाई, तो मुझे बुलसाई समझ में नहीं आया था। बुलसाई का मतलब क्या होता है, कौन बोल सकता है? Fried egg. वन साइड एग स्प्रेड। नहीं, किसी का भी वन आंसर साइडेड सही नहीं हो पोच्ड रहा। एग। नहीं, वो भी सही नहीं आंसर। बुलसाई का मतलब क्या होता है? फ्राइड एग है, बट उसका ट्रांसलेशन क्या है? सर fried जो egg. तो सर एग योग होते हैं सर उसके ऊपर रखे। हाँ, who said that? सनी, किसने सर कहा? अंकिता। सनी साइड Yes, अप Ankita, that's राहुल। right answer. Yeah, that is sunny side up. Yes, Ankita, right answer. It's not. It's a fried egg. Obviously, it's a fried egg, but its name is sunny side up. ठीक है? तो sunny side up को हम कहते हैं बुल साइड, क्योंकि वो बुल की तरह दो आई दिखता है, इसलिए कहते हैं उसको बुल साइड। तो जैसे ही वो बुल साइड कह देगा तो मुझे वो समझ में नहीं आता। मैं गूगल में देखने लग गया कि बुल साइड होता क्या है। अब फोन अलाउड नहीं था तो फंस गया मैं। मैंने पूछा कि सर वुड यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज अ बुलसाई। नेचुरली दिस लीड्स टू अ शेमनेस, ओके, कि यार द वेटर्स ऑफ इंडिया डोंट नो व्हाट इज अ बुलसाई। ठीक है, दिस इज आल्सो हैपन, यू नो, इट्स वेरी हार्ड टू हैंडल अ वेरी वेरी टिपिकल कैथोलिक एंड कैथोलिक ब्रिटिश गेस्ट। बहुत हार्ड होता है हैंडल करना। दे आर वेरी वेरी, they want that they should be served, they to be served, and the food has to be cooked just like a Michelin star chef or waiter. वो IHM के कैटेगरी से बिल्कुल ऊपर है उनकी एक्सपेक्टेशन। ओके, पर ठीक है, it's a great learning. You will learn all this thing if you ever get a chance to work in Oberoi hotels or something. Okay, that's how the, so these are the advantages and disadvantages, but most widely anywhere in the world this method is followed. So we have learned that the order can be taken by doorknob card. Doorknob card is generally used for the breakfast, and order through telephone, it is done on the room service RSOT cabin. Okay, lastly, order through waiter. Order through waiter can be also known as butler service. इसके बारे में सबने सुना ही होगा। Butler service is something, once again, very very expensive one. Let's take an example. If you go to Leela Chanakyapuri, New Delhi, the Oberoi, Nariman Point, Leela Palace, Udaipur, Taj Krishna, all these properties has got a butler service. क्या होता है butler service में basically? देखो, let's take a case study of Taj Hotel. Sorry, people please say 24/7 स्टूअर्ट साथ में रहेगा। हाँ, स्टूअर्ट साथ में रहेगा। ब्यूटीफुल, राइट, राहुल इज एक्सेलेंट। सो दैट्स व्हाई दे आर सेइंग कि मतलब बटलर का मतलब यही समझ लो, गेस्ट ने आंख बंद किया तो आपकी छुट्टी है, गेस्ट ने आंख खोल दिया तो आपकी शिफ्ट शुरू हो गई, खत्म काम। अब अगर उसका आंख 24/7 खुला है या फिर 48 आवर्स तक खुला है, आप भी काम कर रहे हो, नेचुरली बात है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड बटलर सर्विस। ठीक है, मतलब गेस्ट बोल रहे हैं कि मैंने इतना पैसा दिया है तो ऑब्वियसली मैं क्यों सर्विस नहीं लूंगा। गेस्ट के रूम के अंदर एक बटन होता है, वो बटन जो है वो गेस्ट के फोन के साथ, आई मीन लाइक इस सर्वर के फोन के साथ कनेक्टेड है। आप देख सकते हो कि ये जो फोटो मैंने इसलिए यहाँ पे ऐड किया है कि द वेटर इज सर्विंग स्टैंडिंग ऑन अ पूल। तो मतलब इतना इसको गेस्ट को इतना पर्टिकुलर होना पड़ता है कि अगर गेस्ट पूल में इज टेकिंग द बर्थ, दैट टाइम ऑल्सो गेस्ट he wants that the person should stay with him holding a glass of champagne. So this is the creditability, or this is the work style of a butler service. They are there to sacrifice anything, something like that, obviously, which are there in the ethical. जो ethical होगा वही वो sacrifice करेगा होटल के process and system के हिसाब से। Okay, so a butler service person, like the guest is waking up, that means he will also wake up. और बटलर सर्विस के जो गेस्ट, आई मीन लाइक जो वेटर्स होता है, आई हैव सीन इन दी ताज कृष्णा हैदराबाद, जब मैं वहां से ट्रेनिंग करता था, ये होटल छोड़ के जाते ही नहीं है। होटल में एक होता है बंक रूम के अंदर वो जाके सो जाते थे, और रात के 2 बजे गेस्ट सो गया, सुबह उसको 6 बजे निकलना है तो वो 5 बजे उठ जाएगा। So this is the fact. Okay,
यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अभी फोन कॉल की कोई प्रॉब्लम नहीं है। गेस्ट अभी अपने वेटर को कॉल करेगा, आयन को कॉल करेगा, आयन जाएगा, बोलेगा कि आयन मेरे को ये खाना चाहिए, प्लीज मेरे को भेज दीजिए। बस सिंपल का कहानी, उसको ऑर्डर प्लेस करेगा, वो जाके भेज देगा, काम खत्म। इस पे क्या है, इसमें गलती की गुंजाइश बहुत कम होती है। एंड गेस्ट हैज अ चांस टू आई मीन लाइक द सर्वर हैज अ चांस टू अपसेल मोर। और आपको ये भी बोल दो कि अगर मतलब सीधी बात ये कि गेस्ट अगर उस शहर में आया है तो वो एक ही आदमी को जानता है, वो है वो बटलर को। ठीक है, समझ लो अगर गेस्ट को अगर ग्वालियर घूमना है तो वो भी बटलर के साथ जाएगा। गेस्ट को अगर फोन का रिचार्ज करना है तो वो भी बटलर के साथ जाएगा। तो हमेशा उसके साथ वो रहेगा। ओके, ओनली अपार्ट फ्रॉम द होम, रूम के अंदर छोड़ के। ओके, और दूसरी बात ये है कि गेस्ट का जो पर्सनल बिलोंगिंग्स है वो भी इनके मतलब टेरिटोरी के अंदर रहता है। पहले शुरू में ये जॉब सबको अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे लोग सोचते हैं कि पैसे के पीछे भागने से अच्छा है कि लेट्स गो एंड बिकम अ प्रॉपर वेटर इन अ होटल। ठीक है, राइट। ओके, तो आई नेवर डिड दिस सर्विस क्योंकि मेरे होटल में कभी बटलर था ही नहीं, और जब ये अपॉर्चुनिटी आया तभी मैंने कुछ किया नहीं, बिकॉज मुझे आई डोंट लाइक टू डू दिस थिंग। मेरे को कभी अच्छा नहीं लगता था कभी ये करना। हाँ, आप रेस्टोरेंट में आओ, आई विल गिव यू दी बेस्ट VIP सर्विस you could have ever had in the world, but obviously not like this. Okay, so एक के पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं, वो आपने अपनी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। इसके एडवांटेजेस क्या है, आप बहुत अच्छी तरह से आई मीन लाइक सेलिंग कर सकते हो। यू गॉट अ वेरी मैसिव सजेस्टिव सेलिंग। गेस्ट सेटिस्फैक्शन इज वेरी हाई। आप गेस्ट को आराम से वाव कर सकते हो। मतलब आपको 7 दिन तक एक ही गेस्ट को देखना है तो वो गेस्ट तो खुश होकर जाएगा ही जाएगा। और रेस्टोरेंट में आपको एक मील पीरियड डिनर टाइम पे 40 गेस्ट को देखना होता है, तो नेचुरली देयर इज अ चांस ऑफ कंप्लेंट। ब्यूटीफुल कम्युनिकेशन विद हैपन विद द गेस्ट, एंड दिस इज द रीजन बटलर सर्विस जो करता है। इफ गेस्ट इज फ्रॉम यूरोप और अमेरिका, वो आज से आपने उसका तरह से सर्विस किया, माइट बी ही has a or she has a restaurant in America, and after some time he will give you a call, please come to my hotel, I am offering you a job in USA. बस काम खत्म, आपकी लाइफ की लॉटरी लग गई। ओके, देन इसका सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि पीपल रिक्वायरमेंट इज मोर। अगर मेरे पास ज्यादा बटलर है तो ज्यादा गेस्ट है। ओके, so that's the big problem. Wastage of time, मतलब समझ लो, let's take an example, अगर if the hotel is empty, कोई गेस्ट नहीं है, फिर भी इन बटलर्स को बिठा के आपको सैलरी देना होगा। देयर इज नो अदर वे। ओके, सो बेसिकली क्या मैं आपको बोलता हूँ कि ताज कृष्णा में देयर वाज इन हैदराबाद, जब जहाँ से मैंने ट्रेनिंग किया था, देयर वर लेट्स टेक एन एग्जांपल, how much 264 rooms are there. Okay, and 8 floors are there, so which means that each floor कुछ था। तो बाकी जो पहले के जो 5 फ्लोर थे, ग्राउंड फ्लोर से लेके 5 फ्लोर तक, दीज आर नोन एज अ बिजनेस क्लास फ्लोर्स। यहाँ पे रूम सर्विस जाता, लेकिन जो फ्लोर नंबर 6, 7 and 8, दिस फ्लोर्स आर फॉर दी, दीज आर नोन एज एन एग्जीक्यूटिव फ्लोर। इस एग्जीक्यूटिव फ्लोर के जितने सारे रूम है, रूम सर्विस विल नेवर एवर गो देयर, इट विल बी ओनली डन बाय दी बटलर्स। तो रूम सर्विस और बटलर के बीच में यही फर्क हो जाता है। लेकिन हाँ, इनके जो खाना है, फूड है, वो रूम सर्विस का जो डिपार्टमेंट है वहीं से ही आएगा, लेकिन द फूड विल बी पिकअप बाय ओनली दैट पर्सनल बटलर। जो रूम सर्विस वेटर है वो उस खाने को हाथ भी नहीं लगाएगा, अगर उसका बटलर नहीं आया तो खाना वहीं पे रह जाएगा। दिस इज द रूल सेट बाय द होटल्स। अनटिल अनलेस अगर कुछ मैसिव बिजी हो जाए और रूम सर्विस डिपार्टमेंट में कोई काम नहीं है तो शायद उस सिचुएशन में कर दे, बट अदरवाइज द बटलर्स विल ओनली रिमेन ओवर देयर। मतलब लाइक अगर खाना बन रहा है तो बटलर 8 फ्लोर से नीचे आएगा, फूड को पिकअप करेगा, सर्विस एलिवेटर पकड़ेगा, एंड देन वो ऊपर जाएगा, गेस्ट को सर्विस करेगा। So this is the 3 type of orders of room service. One is an order from doorknob card, which you have seen. One is an order from telephone, that is the RSOT cabin. People, this is a very vital term. इसको याद रखिएगा, भूलिएगा मत। And the next one is the butler service or order through waiter. एक ही बात है दोनों। Okay? ठीक है, चलिए, that's it for the day. So now people, time for the question. अगर किसी का कोई सवाल है, दुविधा है, तो please ask the question now.